So good evening and welcome. Happy New Year to all of you. Happy New Year. Happy New Year. I welcome you all to the Spirituality and Healing Meet. And let's have some people share from what we are benefiting from the sessions till now. In fact, in the whole last year. Yeah. The people who have been attending regularly. Life में क्या change आ रहा है? कौन share करना चाहेंगे? कुछ भी, किसी भी topic से, किसी भी session से. आजकल हम वैसे universal laws की बात कर रहे हैं. So if you share from that perspective, it will be good. What is new in your life based on the learnings and the wisdom that you're getting from the universal laws? And let me tell you, these are very, very transformative. आपका एक भी law अगर आपने apply कर लिया अपनी life में, it can give you magical solutions. Yeah. So who would like to share? Anybody? Yes, Tony, go ahead. Well, it's what I would like to share here is that, honestly speaking, in my entire life, I have never ever, gone into the kitchen to do any cooking. That's never been my forte at all. And my brother, my sister, everybody used to tell me that, bhai, in situations, life mein kuch bhi ho sakta hai, so you should definitely learn something. So I would say, this is not my cup of tea, but my domestic help, when he left on the 10th of December, I had no clue how I'm going to manage, because he was supposed to go for 19 days and he has just come back yesterday evening only. And in this duration, the only thing that helped me or guided me was the positive approach or the positivity that I have gotten from the Divine Healing Valley, as well as the Vedanta teachings, whatever. I just, whatever I had asked that boy, the domestic help of mine, कि यार मुझे बता दो कि ये चीज कैसे बनती है या वो चीज कैसे बनती है. I'm not saying that I became a overnight chef, something of that sort, but all this while I managed washing my utensils, washing my clothes, cooking for myself, whatever best possible I could do. And somehow I have been able to survive without any professional help all these days. And how I have managed, and somehow since the time that fellow has come back, I'm actually missing doing my own work right now. In the process, I burnt my hand also very severely, and there were a couple of small little accidents that took place doing things. But I have actually, nothing could stop me. I was just like unstoppable sort of. So that is one thing I wanted to share, that the positivity that I have got from being with this group or with this teaching or whatever, I do not know how do I put it in words, but it has made a remarkable difference in my approach to life. I feel that now in my life, if I'm physically all right, I think I can manage things on my own. Okay, great, Tony. That was wonderful sharing. One thing which comes out very, very clearly in this is that whatever you were doing or whatever you were not doing, who you were being is unstoppable. So that's what I could hear. So you were absolutely unstoppable, and that is the punchline of your sharing. So that should come first, right? Doing में जो मर्जी करो ना, you are the master of your own life. You will do something, you will not do something, that's fine. Being में कौन हूँ, I am interested in that. My whole coaching and this whole teaching is all about who you are being in life. So you are being unstoppable in life, and salute to that. And Thank you so much. And that is what has given you the power. That is giving you the power and freedom in your life, and the courage and the strength to go ahead. I never say if. अभी आपने कहा if I have the physical strength or if the physical health, I will do well. You are physically strong and you are doing well. That's it. It is a statement to the universe. Okay. Right? Thank No you. if and buts. Only jut. No if, no but. Yeah. No, it's okay. Yes. Great, Tony. Wonderful sharing. Just a little correction. I thought I should put it straight away to your mind so that you catch it.
Yes, who else wants to share? Anybody else who wants to share? Yes, Neetaji, go ahead. And after that, Leslie, yes. Sir, earlier also, whenever there would be ups and downs and things, so I would always feel ki I'll come out of it and all this. But now out of this session, so suddenly when there is more problems, unwell or whatever, so the tallest building around me, I would look at that and then I would visualize myself that tall, big. And then I'll tell myself कि मैं तो उतनी बड़ी हूँ, मैं तो सारा कर लूंगी. And it's just small things. Absolutely. So that I picked up from our this thing, and few more things which I start talking also when around people are negative. Even though it used to be earlier also in my mind, but now I am able to put it in words also that this is how it should be. So that has absolutely great, Neetaji. And to sum up, what exactly has made the difference? You have moved from the body consciousness to the soul consciousness. See, when you are from the body consciousness, you know I am this 5'6", or I am this 6 feet body. So my limitations are there. But when you say I am beyond this body, then sky is not the limit. Sky is the beginning of your thinking, then, right? So when you can imagine yourself as that big, that powerful, then you create magic and miracles in your life. It happens. Then it happens. You don't have to do anything then. Whatever you do will be magical. So wonderful. That was great. Thank you, sir. Yes, Leslie, you wanted to share something. Good. Yeah, I definitely would like to acknowledge my brother because from childhood I've seen him not moving his butt at all. And like this is a major movement and major unstoppable being that he's shown. So definitely I would say his progress is my progress, because in my space this is happening, in this group it is happening. It is, so for me that's very, very transformational. So I really want to acknowledge my brother. Thank you, Rons. Thank you. Great, Leslie, and that is a wonderful insight, by the way, right? Thank you. When you take up that, like I am the space where life is happening, and Tony is part of your life, right? Thank you. Great, wonderful. Yes, Sanjeev, good. A question from Leslie. Leslie gave a statement. He never moved his butt. How is that possible? No, what he meant was I never, I can't stand. I heard he never moved his butt. He got what he wanted to, but then what he heard was this, right? Okay, I get that. All right, good. So who else wants to share? Rekha ji, कुछ बोलना चाहेंगे? आज अभी sharing के mood में है सारे. So let me give some time for sharings. क्या चल रहा है life में? Anything moving in your life? Good, bad, ugly? क्या चल रहा है? Anybody wants to share? अच्छा चल रहा है सर. अच्छा चल रहा है, very good. हाँ, पहले जो बुरा लगता था वो बुरा लगना बंद हो गया. अब सब कुछ फॉरगेट होता है कि हाँ जो है सब भूलना है. अब आगे मूव करना है हर चीज के साथ में. ये पॉजिटिविटी काफी अच्छी सी आ चुकी है अंदर से कि किसी चीज को भी नहीं करना है, माइंड नहीं करना है, बस भूल करके आगे बढ़ना है. Okay, very good. So you're moving on in life, yeah? Yeah. Great. And not being affected by negativity. So that is huge. That's great. Wonderful. And of course, I know that she is one who has been practicing her sadhana very well. Whenever I talk to her, I know that. So she is doing her healing. And she was part of the healers program. So she's doing her healings. She's doing her meditation. She's doing her pranayam, and everything is going on. Yeah, I'm doing each and everything. Whatever you said, no, I am doing each and everything. मैं जब भी पूछता हूँ कहती है मैं सारे healing techniques practice कर रही हूँ. Great, wonderful, absolutely yeah, great. I'm doing. Yes, sir. Wonderful, Rekha ji. Yes, and meanwhile, welcome Mamta ji, and welcome Anita ji, and welcome Rajaram ji. Anybody who wants to share? Anita ji, कुछ share करना चाहेंगे? क्या चल रहा है? हम ये पूछ रहे हैं अभी तक के सेशंस में क्या बेनिफिट मिला है और नया साल कैसे आपको ट्रीट कर रहा है, और how are you moving ahead in this new year? Yeah. नमस्कार सर. नमस्कार. सभी को नमस्ते. सर बस नए साल में यही सोचा है कि जो पिछली नेगेटिविटी को खत्म करना है, और और आगे के लिए जो हम सीख रहे हैं उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रही हूँ मैं, और अपने आप को
पहले से बेटर फील करती हूँ मैं। जैसे कभी डिसीजन लेने हैं या कुछ है, कम्युनिकेशन स्किल्स में भी काफी मुझे फर्क पड़ा है। सब अच्छा लग रहा है। Okay. So if I say, मेरी आपसे बात भी होती रहती है फोन पे, तो if I say you are become more confident and more happy, will Yes. that be the right thing? Yes. Very good, Yes. very good, and that is very powerful by the way. जो पूरी Yes, sir. जिंदगी में आज आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ आज और अपनी डिसीजंस ले पा रही हूँ कॉन्फिडेंटली बिना किसी फियर के, तो गोइंग बियॉन्ड योर फियर इज करेज, राइट? और मैंने आजकल ना मैंने एक चीज और सीखी है कि मुझे ना अपना रिमोट कंट्रोल जो है वो मुझे अपने हाथों में रखना है। मुझे अपना रिमोट कंट्रोल अब किसी और को नहीं देना, जो अब तक कर रहे थे हम, कि जो मुझे अपनी सेल्फ ओपिनियन को पहले रखना है, जो मेरे को अंदर से एक्सेप्टेंस है, जो मेरे अंदर से मेरा दिल मानता है। पहले हम लोगों के बारे में सोचते रहते थे ये कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है। अब मुझे लग रहा है जो मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे अपने दिल की बात सुननी है, बस सबको आदर देना है, लेकिन अपने दिल की बात सुननी है। परफेक्ट, वेरी गुड अनीता जी, बहुत बढ़िया। इसी लाइफ का रिमोट कंट्रोल आपके ही हाथ में होना चाहिए, क्योंकि आपकी लाइफ है। अपने घर का ड्राइंग रूम का टीवी का रिमोट आप अपने हाथ में रखते हो ना, पड़ोसी को नहीं देते हो, वैसे ही अपने लाइफ का रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए, तभी आप वो चैनल देखोगे जो आप देखना चाह रहे हो, वरना जो पड़ोसी चैनल दिखाएगा वो देखना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा सा मुश्किल होगा उसमें। ओके, ग्रेट। एंड दूसरी बात जो आपने कही वो सीधा डायरेक्ट सेल्फ लव पे आता है, तो आई विल आस्क संजीव टू say something on that, maybe now or maybe later, because that is one area which is absolutely he is passionate about it and unka forte hai, so I will not venture into it, but what you said was actually the topic of self love, right? तो अपने आप को प्रायोरिटी देना, अपने आप के अपने ओपिनियंस को मानना। एक सेकंड रेखा जी, पॉइंट। उसके बाद औरों को रेस्पेक्ट करना, रेस्पेक्ट करनी है, लेकिन अपने को भी उसमें आगे रखना है, राइट? जैसे बोलते हैं ना, जब तक आप भरे हुए ना हो तब तक आप और किसी को कुछ भी नहीं दे सकते। आप वही दे सकते हो जो आपके अंदर है। आपके अंदर खालीपन है तो आप खालीपन ही दोगे, राइट? बट वो टॉपिक सेल्फ लव का है, तो संजीव ड्यूरिंग द प्रोग्राम व्हेनेवर यू फील लाइक यू कैन बिल्ड ऑन दैट। यस रेखा जी, कुछ बोलना चाह रही थी आप? हाँ, मैं कहना चाह रही थी कि ये प्रोग्राम अटेंड करने के बाद ही इतना अंदर से कॉन्फिडेंस आया है कि अब हम अपना खुद का डिसीजन ले सकते हैं कि अगर हमें आगे मूव करना है तो बस मूव करना है, बियॉन्ड नहीं देखना है कि हमारे पीछे क्या हो रहा है, वो नहीं देखना है, बस अब आगे ही चलना है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये सबके लिए जोरदार तालियां जिन्होंने लोग शेयर किया। बहुत अच्छा शेयरिंग था और बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस आप लोगों को हो रहे हैं, राइट? एनीबॉडी एल्स whom I missed out, कोई शेयर करना चाहेंगे? शशि जो अभी क्या मिल रहा है? अनीता जी ने और रेखा जी ने बोला सब शेयर कर रहे हैं, इवन टोनी ने बोला, मतलब दिस इज ऑल रियली जो विद इन वाला सेल्फ लव होता है ना, वो निकल के बाहर आ रहा है। एब्सोल्युटली अंदर से निकल के आ रहा है बाहर, दैट्स व्हाई इट इज। एंड मुझे तो लगता है अनीता जी, ऑल्दो आपने रजिस्टर कर लिया है, लेकिन आप तो वैसे ही सेल्फ लव प्रोग्राम अटेंड करने से पहले सेल्फ लव की हायर सीढ़ियां चढ़ चुकी हो आप। Okay, great, wonderful. Anybody else who would like to share? Great. So we move on to the session agenda for the session for today, right? कितने लोगों ने पढ़ा? आजकल लोग पोस्ट कम देख रहे हैं, हाँ, फिर भी मैं को पूछने देता हूँ, कितने लोगों ने पढ़ा? आज का एजेंडा क्या है? यस, गो अहेड। नीता जी बताइए। नीता पावर ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड हीलिंग। वो तो है ही है। उसके अंतर्गत आज का यूनिवर्सल लॉ क्या है? Attachment. Okay. The previous line was that. Law of detachment. Correct? Law of detachment. तो सब लोगों ने देखा ये law of detachment? Yes. Good. So before we come to the law of detachment, obviously we need to first understand what is attachment, right? Logical mind यही कहता है ना कि भाई detachment तो ठीक है, लेकिन पहले attachment तो समझ लें। तो attachment क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये होगा, अटैचमेंट क्या है? क्या आपके दिमाग में आता है व्हेन यू हियर अटैचमेंट? एंड इज अटैचमेंट रिक्वायर्ड इन लाइफ? व्हाट डू वी सी? हमको क्या लगता है, क्या अटैचमेंट जरूरी है लाइफ में? अटैचमेंट है क्या? सो लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट अटैचमेंट, देन वी विल नो वेदर डिटैचमेंट इज रिक्वायर्ड और नॉट, एंड देन वी विल मूव ऑन टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ डिटैचमेंट टू अंडरस्टैंड हाउ टू मैनिफेस्ट आवर डिजायर्स। क्यों? क्योंकि कैप्शन में क्या था, ये पिक्चर मैंने लिखी थी, उसमें
पिक्चर में एक कोटेशन भी लिखा था, कोटेशन क्या था? क्या था कोटेशन? एनीबॉडी? किसी ने ध्यान दिया हो? The less you are, if you are detached, you will be able to manifest. Yeah. your With goal. detachment, you will be able to manifest your desire. So that is the whole learning of this session. Okay, but that will come later. But let's start with the first question. What is attachment, and is attachment required in life? So who would like to go and share? जो मन में आए बोले, कोई right answer, कोई wrong answer नहीं है. We are in a discussion. तो क्या दिमाग में आ रहा है जब आप सुनते हैं ये attachment? What is attachment, and is that required in life? Yes. What I want the results to be is attachment for me. Okay. What you want the way you want life to happen. That is the way you are looking at it. So you mean Yes. that gives you attachment. Okay, fine. So that Yes. is your way of looking at it. Good. Right. And as I said, nothing right, nothing wrong. That is the way that is true for you, right? औरों के लिए और कोई क्या बोलना चाहेंगे? सब सहमत हैं इससे या कुछ और बोलना चाहेंगे? What is attachment? सोचिए, देखिए अपनी लाइफ में, देखिए जो हमें चाहिए ही लाइफ में, कुछ भी सामान, वस्तु, रिश्ते, सक्सेस, जो भी जो हमें चाहिए ही, आई थिंक वो अटैचमेंट है. वो तो रिक्वायरमेंट है. उनको खो देने का डर अटैचमेंट है. हाँ, या वो रिक्वायरमेंट है नीता जी जो आपने कहा. मैं इसीलिए फटाफट डिस्टिंग्विश कर रहा हूँ. और उनको खो देने का जो डर है वो अटैचमेंट है. करेक्ट. So we have to first understand and distinguish what is attachment. Whatever you need in life, food, clothing, shelter, ये requirement है. अलग अलग लेवल पे अलग अलग requirements होती हैं. But the moment you are scared that you're going to not get them or you're going to lose them, that feeling is what gives attachment. Very good अमित जी, बहुत बढ़िया आपने distinguish किया लोगों के लिए. Good. Anybody else who has a different view? और कुछ बताना चाहेंगे? दिस इज एन ओशन एक्चुअली. जब जितना आप अपनी लाइफ में झांक के देखोगे आपको दिखेगा अरे ये भी अटैचमेंट, अबे ये भी अटैचमेंट. व्हेन आई सॉ दैट आई वाज लाइक कंप्लीटली ज़ैप्ड. इतनी अटैचमेंट अपनी लाइफ में रख के बैठा हूं. नो, दैट इज अ काइंड ऑफ थिंग. सो लुक इनटू एनी एरिया ऑफ योर लाइफ. इट कुड बी पीपल, इट कुड बी थिंग्स, इट कुड बी वेरी सिंपल थिंग लाइक अ लैपटॉप और अ मोबाइल. यू कैन गेट अटैच्ड टू दैट आल्सो. इट कैन बी अ हैबिट, a behavior pattern that you can get attached to. It can be a person whom you are getting attached to. Okay, so I'm just throwing some points to you so that you look into your life. औरों की लाइफ को नहीं देखना, अपनी लाइफ को देखना है. मेरी लाइफ में अटैचमेंट कहाँ है और उससे क्या हो रहा है? अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, जरूरी है या नहीं है? That is the question. तो पर अध्याय नहीं करना है, स्वाध्याय करना है. अपना अध्ययन करेंगे. Yes. तो who else wants to share? क्या खुल के आ रहा है? क्या दिमाग में घंटी क्या बज रही है? यस, वेलकम पार्थ. वी आर इन अ डिस्कशन ऑफ व्हाट इज अटैचमेंट एंड इज द अटैचमेंट रिक्वायर्ड इन योर लाइफ. सो लुक इनटू योर लाइफ एंड यू कैन पार्टिसिपेट. यस, एनीबॉडी एल्स? और कौन बोलना चाहेंगे? हो गया? तो हाँ जी रेखा जी बोलना चाहिए. हाँ, हमेशा अपने आसपास की चीजों के बारे में सोचते रहना, अपने बच्चों के बारे में, अपने परिवार के बारे में. वो मेरे को लगता है कि वो अटैचमेंट है कि हम हमेशा उनके बारे में सोचते रहते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं. ओके. तो किसी वस्तु या किसी इंसान के बारे में सोचते रह जाना, ये एक अटैचमेंट का एक फॉर्म है. यस, यू आर राइट, यू आर करेक्ट देयर, राइट. ओके, एनीबॉडी एल्स? और कौन बोलना चाहेंगे? हाँ जी अनीता जी. सर, मैं इस बात से एग्री हूँ कि फियर ऑफ लॉस, मतलब चाहे वो कोई भी चीज हो, जैसे चाहे रिलेशंस ही हो या कुछ है, तो जैसे मैं अपने डैडी से बहुत ज्यादा अटैच थी.
आप म्यूट कर लिए अपने कि भाई जब आप नहीं रहोगे तो हम आपके बिना कैसे जिएंगे, हम तो वो कल्पना भी नहीं कर सकते आपके बिना जीने की। तो फिर मेरे डैडी कहते थे हमारे से ऊपर भगवान है, तो वो तो सबने जाना है, तो तुम उनके बच्चे हो और अपनी तरफ से अपनी नीयत सही रखना, करैक्टर सही रख के चलना, तो वो हमेशा तुम्हारी मदद करेंगे। हमने तो तुम्हें इतना बड़ा बड़ा करके जा रहे हैं। ऐसे चीजों से भी है, जैसे मोबाइल है, मैं मोस्टली अपने एरिया में मोबाइल कैरी करके नहीं जाती। मेरे को लगता है अगर गुम हो गया तो मेरे सारे फोन नंबर और ये सब चले जाएंगे, तो मेरे अंदर ये फियर रहता है। तो मैं अपने रमेश नगर एरिया में कभी, मतलब मेरे को मैं इतनी मतलब उससे हूँ, मतलब उसके एडिक्शन कम है, लेकिन मेरा उसको खोने का डर बहुत है इन कुछ चीजों में। बहुत बढ़िया अनीता जी, बहुत अच्छा आपने डिस्टिंग्विश किया आपने, राइट? फियर ऑफ लॉस, fear of loss will cause attachment. Yes. Right? So first of all, we need to understand attachment is coming from when you're operating from your ego. Ego creates fear, and fear of losing will give you attachment. ये practical analysis है सिर्फ, ठीक है ना? जब मर्जी देख लीजिए, जब भी आपको किसी चीज को खोने का डर होगा, fear आएगा। fear तो है ही है ना? fear कहाँ से आ रहा है? अगर आप देखोगे ईगो से आ रहा है। क्यों? क्योंकि सब चीज, कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। हम टेम्परेरी चीज को पकड़ के रखने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे वो मोबाइल हो, एक न एक दिन उसकी एक्सपायरी डेट होनी है। चाहे वो इंसान हो, एक्सपायरी डेट आनी है। तो बाहर की कोई भी चीज होगी दुनिया में, चाहे वो वस्तु हो, व्यक्ति हो या परिस्थिति हो, उसने जाना ही जाना है। लेकिन फिर भी हम उसके साथ अटक गए हैं, खोने का डर है, तो अटैचमेंट। ठीक है जी। तो अटैचमेंट समझ गए सब लोग, अटैचमेंट क्या है? हाँ, यस पार्थ, यू वांट टू शेयर समथिंग? ये जो अटैचमेंट वाली है, अगर इसको लेके चलूं तो इट्स आल्सो एन एसेंशियल पार्ट। लाइक एक बच्चा जो होता है वो आई थिंक सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, सबसे ज्यादा अटैच्ड होता है चीजों से, मतलब यू नो दैट इज व्हाई एक चीज होती है। ओके, एंड एज वी ग्रो अप, ठीक है, हम चीजें कुछ छोड़ते हैं, पकड़ते हैं, वो चलता रहता है लाइफ में, ठीक है। बट ये जो अटैचमेंट वाली चीज है, इसको हम दो तरीके से ले सकते हैं। ओके, जैसे आपने बोला, एक पर्सपेक्टिव वो हो गया कि अगर फियर ऑफ लॉस से आ रहा है, यानी कि वो ईगो का एक पार्ट हो गया, ठीक है। एक अटैचमेंट जो है सत्युग, आई मीन वो आपका सत्वगुण वाले पर्सपेक्टिव से भी आ सकता है, ठीक है। जैसा आपने बोला कि हाँ ठीक है, जैसे आपने बोला कि टेम्पररी चीज है, लेके चलो, ठीक है, बट इट डजंट मीन दैट यू हैव टू लीव इट राइट नाउ, ठीक है। एक पार्ट होता है, जब खत्म होगा, कंप्लीट होगा, देन इट ऑटोमेटिकली गोज। बट व्हाट वी सेड वाज इनिशियली, जो भी आपको लाइफ में चाहिए वो रिक्वायरमेंट है। हाँ हाँ, मतलब तो बच्चे को पेरेंट्स की समय रिक्वायरमेंट है, डिपेंडेंसी है, अटैचमेंट नहीं है। यू हैव टू डिस्टिंग्विश व्हाट इज अटैचमेंट, व्हाट इज रिक्वायरमेंट। वो हम पहले बात कर चुके हैं, पॉसिबली यू जॉइंड अ बिट लेट, राइट? रिक्वायरमेंट अलग चीज है, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर इज अ रिक्वायरमेंट। और बच्चा उस समय सक्षम नहीं है तो वो पेरेंट्स पे डिपेंड होगा। नहीं तो फिर अटैचमेंट को लोग हर चीज से क्यों जोड़ लेते हैं? अभी अटैचमेंट को हम डिस्टिंग्विश कर रहे हैं, अभी सिर्फ हम अटैचमेंट को डिस्टिंग्विश कर रहे हैं कि अटैचमेंट क्या है और क्या ये लाइफ में जरूरी है, ये देख रहे हैं। ठीक है, सो बी इन द डिस्कशन एंड इंक्वायर मोर। और अपनी लाइफ में देखिए, जो भी आपको लाइफ में चाहिए वो रिक्वायरमेंट है, और उसके खो जाने के डर से अटैचमेंट होता है। तो अटैचमेंट लाइफ में जरूरी नहीं है, रिक्वायरमेंट जरूरी है, राइट? पेरेंट्स रिक्वायरमेंट है, डिपेंडेंसी है, क्योंकि अभी आप, जब बच्चा बहुत ही छोटा है तो वो उठ के चल भी नहीं सकता, तो फिजिकली डिपेंडेंट है। जब वो इवन टीनेजर है तो वो मेंटली और इमोशनली डिपेंडेंट है। 5 साल का बच्चा मम्मी को छोड़ता ही नहीं है, राइट? फिजिकली, मेंटली, इमोशनली वो डिपेंडेंट है। तो दैट्स व्हाई अटैचमेंट आए। उस समय अगर 1 मिनट के लिए भी नजर नहीं आएगी तो ही विल बी पैनिकी। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड अटैचमेंट है, बट उस समय उसकी वो डिपेंडेंसी है। डिपेंडेंसी ऑल्सो कैन ब्रिंग अटैचमेंट। So we are distinguishing what is attachment. Dependency can bring attachment. You're right. But we have to understand and move away from attachment. That is the whole law. So universal law पे हम बात नहीं आएंगे, अभी हम सिर्फ attachment को distinguish कर रहे हैं. So I hope everybody clear with me. किसी को कोई confusion तो नहीं है? Great. Now let us look more into attachment. थोड़ी सी और analysis कर लेते हैं, क्योंकि जब तक attachment clear नहीं होगा पूरी तरीके से, हम detachment को समझ ही नहीं सकते.
Correct? So let us first look at physical attachment. सबने स्कूल में एक गेम खेली होगी, 3-legged रेस. कितने लोगों ने खेली है या कितने लोगों ने देखा है, सुना है? 3-legged रेस देखा है ना? क्या करते हैं उसमें? या एक और भी गेम खेलते थे हम लोग, सैक रेस होता था. सैक रेस होता था, करेक्ट? तो सैक रेस को छोड़ देते, 3-legged रेस पकड़ते हैं. उसमें 2 जने होते थे, दोनों को एक टांग पकड़ के बांध देते थे, तो नाउ देयर आर ओनली 3 legs. ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड 3-legged रेस. और उसमें भागना होता था, तो पेयर को भागना होता था. ऑब्वियसली दे हैव टू कोऑर्डिनेट. So everybody can visualize that game, right? Now that is physical attachment. Example है ना, किसी 2 जनों को पकड़ के आपने दोनों के एक पांव पकड़ के बांध दिया, एक का राइट लेग और एक का लेफ्ट लेग फेसिंग इन फ्रंट मान लीजिए. अटैच हो गए दोनों फिजिकली. कितना कंफर्टेबल था वो लाइफ? रेस के लिए तो ठीक है, अगर जिंदगी भर उनको वैसे ही रहना हो फिजिकली अटैच, हाउ कंफर्टेबल विल बी लाइफ? कितनी अच्छी लाइफ होगी, कितनी प्यारी लाइफ होगी, कितनी फ्रीडम होगी, कितनी पावर होगी, कितनी फुलफिलमेंट होगी. अगर दोनों पांव मिला मिला के चलते ही रहना है, मतलब एक को अगर बाथरूम जाना हो दूसरे को जाना ही पड़ेगा. एंड वी हैव द केस ऑफ कॉन्जॉइंट ट्विंस. कॉन्जॉइंट ट्विंस सुना है आप लोगों ने? जो ट्विंस होते हैं और उनकी बॉडी जुड़ी हुई होती है, तो जुड़े हुए बोलते हैं उनको. उनकी लाइफ आप समझ सकते हैं कितनी फ्रीडम होती है लाइफ में. ये फिजिकल अटैचमेंट की बात कर रहा हूँ. I just want to distinguish what is attachment. Making sense? Is attachment important in life? No. Attachment is only causing problems. Physical attachment in any case, चिपक गए हो एक दूसरे के साथ, वो प्रॉब्लम करनी ही है. आप एक दूसरे को स्पेस दे ही नहीं पाओगे. क्लियर हो रहा है ये फिजिकल अटैचमेंट? तो फिजिकल अटैचमेंट इज डेफिनेटली गोइंग टू कॉज प्रॉब्लम्स. 1-2 मिनट के लिए ठीक है, 3-legged रेस के लिए ठीक है, हाँ. या अगर एक दूसरे के हाथ पकड़ के बांध दिए, जैसे कई पिक्चरों में हमने देखा, दोनों को एक हथकड़ी में बंद कर दिया है. I remember a scene from Love Story where Amjad Khan, the police inspector, has tied up the hero and heroine. कि लड़का लड़की को लेके जा रहा हूँ. I still remember that humorous scene. तो उन दोनों को एक साथ बांध के ले आता है. Now they are again no freedom. So physical attachment will never give you freedom in life. Experience में आ रहा है ना ये? तो physically you need to be detached. अब चलिए mentally और emotionally देख लेते हैं. Mentally attached हो किसी के साथ, मतलब क्या है? जो आप सोच रहे हो वही मैं सोच रहा हूँ. आप दुखी हो, मैं भी दुखी हूँ, emotionally attached. और ये होता है कई बार. बेटे को दर्द हुआ, बच्चे को दर्द हुआ, माँ बाप एकदम छटपटा उठते हैं. ओए होए मेरे बेटे को चोट लग गई. राइट? नाउ आई एम नॉट सेइंग गुड और बैड. अटैचमेंट है. पुत्र मोह सबसे बड़ा मोह है. And the greatest example for that comes in Mahabharata, where Dhritarashtra forgets everything when he sees Duryodhan. उसको कुछ भी याद नहीं रहता उसके बाद. वो पुत्र मोह में ये भी भूल गया कि क्या धर्म है, क्या धर्म है. So attachment to your children can be very, very strong. And you think it is love. As long as it is love, it will give freedom. As long as it is love, it will give you power. As long as it is love, you will experience full self-expression. The moment you are attached, there will be no freedom. You will be helpless. आपको कुछ समझ में नहीं आएगा क्या सही है क्या गलत. Making sense? So mental attachment and emotional attachment. We have seen examples of possessive husbands and wives, possessive lovers, right? एकदम कोई स्पेस नहीं छोड़ते, no freedom. The other person can feel suffocating. Yes or no? मूवीज में देखा होगा, अगर लाइफ में नहीं देखा है तो. तो फिजिकल अटैचमेंट, मेंटल अटैचमेंट, इमोशनल अटैचमेंट का रिजल्ट दिख रहा है आपको. नाउ आंसर. इज अटैचमेंट गुड, बैड, अगली, रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड? Attachment comes from ego, which is fear based. Attachment is always to fear based. Loss of, fear of loss. Attachment कभी भी आपको खुशी या जॉय नहीं देगा.
वरी देगा, एंजाइटी देगा, सैडनेस देगा. Correct? Making sense? Yes. So now let us have some people share. क्या समझ में आ रहा है? अटैचमेंट की क्लैरिटी हुई? क्या लाइफ में अटैचमेंट चाहिए आपको? क्या हमको अटैचमेंट लाइफ में रखनी चाहिए? हाँ या ना? और अटैचमेंट हमेशा बाहर की दुनिया से होगा. तो वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, आई कीप रिपीटिंग दिस, यही है आपके अटैचमेंट का कारण. देखो आपकी लाइफ में कहाँ अटैचमेंट आ रही है, क्या अटैचमेंट जरूरी है. So somebody can be very crazy about 100 pair of shoes or 100 pair of suits in the wardrobe. ये भी अटैचमेंट है. और इसी के लिए सॉल्यूशन दिया हुआ है ना, अपरिग्रह, नॉन एक्यूमुलेशन. दान करना शुरू कर दो, अटैचमेंट खत्म हो जाएगी. So there are various ways how to reduce the attachment. वो बात की बात है. लेकिन attachment, first we need to be clear. What is attachment and do you need attachment in your life? Anybody wants to share? कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो? हाँ जी, हाँ जी अनीता जी बोलिए. सर लाइफ में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अटैचमेंट जरूरी भी होती है. जैसे माँ पेरेंट्स की बच्चों के प्रति अगर वो अटैच्ड ही नहीं होंगे तो वो उतनी अच्छी तरह से बच्चों की केयर नहीं कर पाएंगे. मेरा अपना व्यू है सिर्फ ये. माँ और बच्चों के लिए अनकंडीशनल लव चाहिए, अटैचमेंट क्यों चाहिए? फिर भी पेरेंट्स अटैच तो होते ही है ना. होते हैं, अलग चीज है. हाँ, होना लेकिन चाहिए ये नहीं मानता हूँ. ऐसे ही हम अपने घर की बिलोंगिंग से, चीजों से अटैच होते हैं, तभी हम उनकी केयर भी कर पाते हैं. अगर हम अटैचमेंट नहीं होती तो हम ऐसे तो उनकी वैल्यू नहीं समझेंगे. ऐसे रिश्तों में भी होता है कहीं ना कहीं, जिनसे हम अटैच होते हैं उनकी गलत बातें भी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, उनके गुणों को भी हम एक तरह से कवर कर देते हैं क्योंकि हम उससे अटैच होते हैं. और लेकिन जब हम इस चीज से ऊपर उठते हैं तब एक फीलिंग अलग होती है. जब हम एक तरह से तटस्थ होकर, एक किनारे पर होकर जब सारा खेल देखते हैं तो लगता है कि हमारे बिना भी कहानी तो चल ही रही है, दुनिया चल रही है, सब चल रहे हैं. लेकिन कहीं ना कहीं अगर हमने घर में कोई कीमती चीज लाई है, अगर हम उसके प्रति अटैच नहीं होंगे तो हम उसकी केयर भी तो नहीं करेंगे ना, हम उसको वैल्यू भी तो नहीं देंगे ना. ध्यान रखना अलग चीज है, अटैचमेंट अलग चीज है. ओके. किसी का ध्यान रखना अलग चीज है, अटैचमेंट अलग चीज है. हाँ जी अमित जी शेयर करना चाहेंगे? सर एक हाँ संजीव भाई पहले आप. गुड सब लोगों को बोलना ही है आज. किसी भी रिलेशनशिप के ना 4 इंग्रेडिएंट्स हैं मेजर. एक है अटैचमेंट जो कि अलग प्लेट में रखना चाहिए, और बाकी जो 3 इंग्रेडिएंट हैं वो है कनेक्शन, अफेक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. वो जो माँ और बच्चे का है वो कनेक्शन से बन रहा है ओरिजिनली, या बनना चाहिए आइडियली रिस्पॉन्सिबिलिटी से एंड अफेक्शन से. कनेक्शन, अफेक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी. जब हम स्पिरिचुअल पाथ पे होते हैं ना अनीता जी, तो ना ऐसा टाइम आता है कि इन चारों इंग्रेडिएंट्स में बड़ा माइक्रोस्कोपिक डिफरेंस समझ में आने लगता है. और फिर कैसे डिटैचमेंट को अलग प्लेट में कैटेगराइज करके अलग रखना है और बाकी तीनों चीजों से प्ले करना है, खेलना है पूरे रिलेशनशिप को, जिसमें अफेक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी और कनेक्शन. अफेक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कनेक्शन. अमित जी बहुत ही बढ़िया आपने समझाया है. सिर्फ चौथा पॉइंट में हटाऊंगा. क्योंकि मेरा जो मानना है, या एक स्टेटमेंट में बोलूंगा, बी कनेक्टेड टू एवरीथिंग, डोंट बी अटैच्ड टू एनीथिंग. यदि आप हो at the soul level, at the energy level, you are connected to the whole universe, but you're not attached to anything. तो कौन सा पॉइंट आप हटाना चाहेंगे, लास्ट वाला? अटैचमेंट की जगह कनेक्शन है. अटैचमेंट ईगो लेवल पे है, कनेक्शन सोल लेवल पे है. हाँ, आई थिंक मैं समझा नहीं पाया. आई थिंक अटैचमेंट एक प्लेट में अलग से है, अटैचमेंट छोड़ दो, अटैचमेंट की जरूरत ही नहीं है. लाइफ में किसी भी रिलेशनशिप में 3 चीजें चाहिए जो आपने बोली हैं. आपने तो पूरा सेशन मेरा एकदम समराइज कर दिया. बहुत बढ़िया. कनेक्शन, अफेक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये है प्राइमरी थिंग्स इन लाइफ. यू नीड टू बी कनेक्टेड टू द होल यूनिवर्स. हर जीव के साथ आप कनेक्टेड हो, आप मानो या ना मानो, आप जानो या ना जानो. दिस इज ए ट्रुथ. You are divine, you are connected at the energy level with all the living beings in the universe. आप connected हैं.
अटैचमेंट की जरूरत ही नहीं है। जब कनेक्टेड है तो अटैचमेंट की जरूरत ही नहीं है। तो forget attachment, not required. Connected, feel connected with everybody. That is a soul to soul connection. Attachment ego से आ रहा है, connection soul level पे आ रहा है. When you are a soul, you need to be connected. So be connected with everything and not attached to anything. That is the freedom. That gives you power. That gives you freedom. That gives you self-expression. चाहे वो लोग हों या चीजें हों, चीजों का ध्यान रखना है अनीता जी, अटैच नहीं होना है। मोबाइल का ध्यान रखना है, मोबाइल को छोड़ के जाना नहीं है, घर में बाहर जाना है तो जरूरी है, कभी कभी मोबाइल लेके जाइए, ध्यान रखिए, लेकिन अटैचमेंट होगी तो फंस जाओगे। अटैचमेंट मीन्स यू आर ट्रैप्ड। I have a Attachment question. means you are trapped. Very simple. Yes, yes, Sanjeev, good. Interview उसके बाद आप, हाँ जी। Neha was asking some questions. So Neha, is it important? पहले आपको पूछना, आप पूछ लो, because what Anindya ji said उसके ऊपर एक बहुत important point है जो when Shashi you were asking what do you mean by attachment, तो उस टाइम जानबूझ के बोला नहीं था। Can I just ask one quick question? Yeah. This is in regards to the similar situation what you're talking about. Sacrificing in love, whether it's mother, daughter, mother, son, husband, wife. When you say that love gives you freedom and that's where the detachment comes in, when you sacrifice in love, is it something to do with an attachment or is it something to do with the will or the detachment part? Because as you said that love gives you freedom, love doesn't curb you, it gives you strength, but you tend to sacrifice a lot in love. So I want that is a different topic. That is a different topic, but I've got your concern. आप ये बोलना चाह रहे हैं कि when a relationship, when you're in love with somebody, you may sacrifice, but is that attachment or detachment? Detachment तो किसी भी हालत में नहीं है वो, क्योंकि आप जब sacrifice कर रहे हो, obviously there is a feeling of compromise, or there is a feeling of being small. There is a feeling of that you have lost something. Right. So it would be more in terms of attachment than detachment. Okay. जहां आपको पावर और फ्रीडम नहीं है, मान लीजिए कहीं ना कहीं पे आप अटैच्ड हैं, आप क्यों सैक्रिफाइस कर रही हैं? Possibly because you fear that the person will go away, or the person will not care for you, or the person will not give you what you want. Think about it. I'm just throwing something right now without knowing and getting into the details. Yeah. Right. So think about it. And if there is a fear of loss, it is attachment. Okay. Just be in that inquiry and we will come back again. Yes, Sanjeev, sure. Go ahead. So Shashi, I'm saying the attachment का एक definition, एक word बोल रहा हूँ जो बहुत strong word है. People may like or not like, but I'm talking on the attachment की reality. Attachment का मतलब जहाँ आपने जैसा नीता जी ने बोला mother और parents और बच्चों के बीच का attachment, वो attachment नहीं है, वो transaction. मेरे लिए attachment is always transaction. और ये बहुत strong word बोल रहा हूँ क्योंकि जहाँ हम कभी भी attach होते हैं हम फिर ट्रांजैक्शन मोड में आ जाते हैं। और शशि ने और अमित जी ने इतना अच्छा वर्ड दिया अबाउट वर्ड कनेक्शन। कनेक्शन जब होता है तब आप ट्रांजैक्शन में नहीं आते हैं, अटैचमेंट में हम ट्रांजैक्शन में आते हैं, इसीलिए अटैचमेंट इज द डिटोरिएटिंग वर्ड। दैट्स व्हाट आई वुड से, सिंपल। वेरी गुड संजीव, ब्रिलियंट एंड वेरी गुड डिस्टिंक्शन। बहुत लोगों को इससे क्लैरिटी मिली होगी। यस, इट इज अ ट्रांजैक्शन, इट्स लाइक ट्रेडिंग एंड वी से ना love is not trading. Normally when we say I love you, there is a lot of transaction happening. Correct? You know what you want and you know what you are paying. So that is not love, that is transaction, that is trading. Good Sanjeev, thank you very much. Yes, who else wants to share something? Kya khul ke aa rahe? Hello. Yes, Leslie, go ahead. I think Amit ji ने जो सबसे पहला point बोला था about the fear, तो मेरे हिसाब से undercurrent about all the attachments, whether even sacrifices or बच्चों के लिए हम लोग जो करते हैं या अनीता जी ने जो बोला, I think undercurrent सबका fear ही है। अगर बहुत ही ध्यान से हम उसको देखें और बहुत ही subtle movement में देखें तो undercurrent सबका fear ही है
कि ये ना हो जाए इसलिए मैं सेक्रीफाइस कर देती हूँ, ये ना हो जाए मेरे बच्चे के साथ इसलिए मैं उसको लुक आफ्टर करती हूँ, मेरा मोबाइल के हो गया, या मतलब वॉट एवर इट इज। आई थिंक अंडर करंट सबका फेयर ही है, एंड मतलब बहुत ज्यादा शब्दों में नहीं, सिर्फ मुझे लगता है एक फेयर बहुत ही प्रोफाउंड तरीके से निकल के आता है। दैट्स व्हाट आई सी इट एज। Absolutely, and that is why people don't even realize that they are completely living in attachment, and then they say there is no joy. कहाँ से आएगा joy? आपके पास freedom और power है ही नहीं। जहाँ freedom नहीं है वहाँ पे love and joy cannot exist. The moment you start expecting something, you kill the joy. You kill the possibility of a joy. Forget the joy. You kill the possibility of any joy. Yes, yes, sir, Leslie. एक चीज और आई, द डिजायर ऑफ परमानेंसी, ये you're desiring things to be permanent and वो बिगड़े ना, अगेन वो ये subtle emotion वही fear का ही है। तो even desiring permanency is the form of attachment which I see, and that is out of the ignorance of the spirituality. Absolutely, absolutely. Permanence is a result of ignorance, number one. और जब आप ignorance में होंगे तो अज्ञान से आपका ego activate हो ही जाएगा। Ego is fear based, so it will give rise to attachment naturally. Yes, you're right. Yes, Parth, you need to say something. Go ahead. Mute पे हो, mute पे हो। पूछनी थी, हाँ हो गया। तो लाइक एक सबसे लाइक एक ठीक है, हमने पेरेंट्स के रिलेशनशिप की बात करी, यू नो चाइल्डहुड रिलेशनशिप, बट उससे भी कहीं गुना स्ट्रॉन्ग एक रिलेशनशिप होता है अपनी बॉडी के साथ, फिजिकल बॉडी के साथ में, ठीक है। एंड जो हम लोग कॉमनली देखते हैं कि ओल्ड एज में लोग होते हैं, ठीक है, व्हेन दे आर लाइक क्या कहते हैं, बॉडी इनकी डेटोरेट होनी शुरू होती है, दैट कॉजेज अ लॉट ऑफ सफरिंग इन पीपल, है ना, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते। एंड एक पेन पॉइंट होता ही है कि जो जब वो लाइन कहते हैं ना कि भाई बुढ़ापा आ गया, तो उसके बाद बंदे का नेक्स्ट थॉट ना ये होता है अरे यार ये हो गया वो हो गया एंड ऑल दैट। तो उससे कैसे निकल सकते हैं? So first of all, you need to understand. Yeah, I got it. Body discomforts की बात करो, चाहे वो young age में आए या old age में है, doesn't matter, right? Anything connected with the body. So you missed the first dialogue which I said in the beginning, right? तो एक छोटी सी स्टोरी है, मैं दोबारा से बता देता हूँ जो लोग उस समय नहीं थे। तो एक बड़े ज्ञानी ऋषि टाइप के एक आदमी होते हैं, काफी शरीर में तकलीफ हो रही होती है, राइट? तो लेटे हुए हैं बेड पे, बहुत लोग आ रहे हैं मिलने के लिए, उनके शिष्य हैं, कोई जान पहचान वाले हैं, सब लोग आ रहे हैं। तो एक जना आके बोलता है कि स्वामी जी कैसे हैं, आपकी तबीयत मतलब कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। कहना है बहुत बढ़िया, अभी तो मैंने सुना कि कल रात की आपको तबीयत बहुत खराब हो गई थी, वैद्य वगैरह को बुलाना पड़ा था। तो ओ हाँ शरीर खराब है, लेकिन मैं बहुत बढ़िया हूँ, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड आई एम नॉट द बॉडी, आई एम द सोल। जब ये रियलाइजेशन आ जाती है, then you start witnessing what is happening in your life, in your body and in your mind. तो अगर आपके शरीर में कुछ हो रहा है तो दर्द होगा, पेन होगा, सफरिंग और मिजरी अभी भी ऑप्शनल है। रोने धोने की जरूरत नहीं है। शरीर में दिक्कत है, हाँ है, दवाई खा रहा हूं, हो जाएगा ठीक, काइंड ऑफ अ थिंग, राइट? किसी की आपके फैमिली में किसी कोई गुजर गया है, कोई तकलीफ में है, बच्चे को तकलीफ हो रही है, माँ बाप को तकलीफ हो रही है, आप उनको देख रहे हैं, पेन है, उनको पेन हो रहा है, आपका काम है, आपके कर्म में क्या है, उनकी सेवा करना। आप श्रवण कुमार बन के अपने माँ बाप की सेवा कर रहे हो, या आप एक रिस्पॉन्सिबल फादर की तरह अपने बेटे का इलाज कर रहे हो, एंड इट कुड बी ए वेरी वेरी फेटल डिजीज, करेक्ट? A child could be suffering from blood cancer and the parents are absolutely panicky. एक माँ बाप के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? एक बेटा ऐसी हालत में हो जो वो कुछ नहीं कर सकते, हेल्पलेस स्टेट में है, पेन है, सफरिंग और मिजरी की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है। Whatever is required to be done, you do. The soul is on a journey, will go through the karmas, will go through the experiences of life and will move on. The soul is a witness to what is happening in the body and mind. यही स्पिरिचुअल ज्ञान है ना, और वही सीखने हम यहाँ पे आए हैं। पेन होगा, सफरिंग और मिजरी की जरूरत नहीं है। जहां सफरिंग एंड मिजरी एक्सपीरियंस करने लग गए, अब अटैच हो गए आप। पेन का इलाज हो सकता है, पेन को आप देख सकते हो,
You can do the needful, serve them, whatever is there in your capacity. चाहे वो पेरेंट्स हो या बच्चे हों, मैं क्लोज रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ, बाकी लोग तो उसी रेंज में आएंगे फिर, है ना? तो यू हैव टू टेक केयर लाइक ए केयर टेकर, लाइक ए नर्स. नर्स के लिए कोई पेशेंट बेड नंबर होता है, पूरा ध्यान रखती हैं, बट देन दे आर नॉट अटैच्ड, दे आर डूइंग देयर जॉब. सीख सकते हैं इससे भी हम. Take care of your people who need any kind of support or contribution. You're contributing to their life without any attachment. You never know when the soul is going to leave the body. जब तक हैं शरीर में उनकी सेवा करो. This is compassion. Parth, so I hope you got some answers. Think about it. We'll come back later. Yes? Okay, good. So everybody clear? At the same page, and somebody else wanted to share. Kaun? Amit ji, aao? Yeah, Mamta, you wanted to share. I just wanted like आपने expectation वाला point actually बोल ही दिया, so because it just stuck me कि हाँ attachment से ही हमें expectations भी आती हैं. Because attachment से expectation आती है और expectation से और attachment हो जाती है. So you have to understand expectation. It's a vicious cycle. You start expecting something from someone or anywhere, you kill the joy, you kill the possibility of joy. Now you cannot be joyful. Very true. Anxiety में आ गए, anxiety zone में आ गए आप. Something मेरे को ये experienced. expectation चाहिए. I'll give you a very simple example. India-Pakistan match. All the Indians are supporting. हाँ, जो cricket fans हैं तो वो attached हैं, पूरी तरह से attached हैं. उनको ये बोल दो कि भाई पाकिस्तान जीत जाएगा, 1 लाख का बेट लगा ले, सवाल ही नहीं पैदा होता, इंडिया ही जीतेगा, आखिरी मिनट तक इंडिया ही जीतेगा, ना, kind of a thing. So attached to it. Now can they enjoy the game? Do you think they are enjoying the game? Anxieties are Cricket is their passion, but India को जीतना ही है, and they have lined up everything. यहाँ cold drink है, यहाँ chips है, यहाँ 15 लोग हैं, शांत बैठे हैं, and then whole excitement going on. आपका adrenaline बढ़ रहा, आपका BP बढ़ रहा, लोगों को heart attack भी हुआ है. देख पिक्चर में हमने देखा, Sachin got out and somebody shoes उड़ गया, मर गए, right? So people can get heart attack, and they used to actually get heart attack when Sachin Tendulkar used to get out. पूरा इंडिया disappointed, depression में चला जाता था अगर वो जल्दी आउट हो गया, और वो 100 मार दे, पूरा इंडिया दिवाली मना रहा है, right? So you have to understand, you are so attached, now you can't enjoy. There is no possibility of a joy. Enjoy कब करते हो? Result आने के बाद. Now expectation has gone. Now either they are in depression or they are full-fledged celebrating. Now they are enjoying. अगर जीत गया इंडिया, हाँ, आप मजा. Now they can enjoy. Till then, no joy. You have to understand, attachment will always kill the joy. Attachment, expectations will always kill the joy. And this is a technical point you need to understand. There is no, इसको emotional problem नहीं बनानी है. ये technical problem है, समझना है. जब भी expectation लाओगे, joy खत्म हो जाएगी. Simple rule है. जब भी आप attachment में जाओगे, joy खत्म हो जाएगी. महाभारत का sequence लेते हैं. धृतराष्ट्र, all he wanted was Duryodhan to become the king. सब कुछ कर लिया, सारे तिकड़म लगा लिए, जो राइटफुल जिसको मिलना चाहिए था उसको भी हटा दिया, सब कुछ कर दिया उसने, मारने की कोशिश भी कर ली, everything he did. Was he happy? Was he joyful? No. No. Always उसको यही डर था, कब जाएगा मेरा थ्रोन, कब जाएगा. बैठे बैठे भी अपने मुकुट को पकड़ के रखता था वो, मेरा मुकुट मेरे हाथ से न चला जाए, मेरे बेटे को. That is पुत्र मोह. So putra moh can kill you, kill the joy in you. So attachment will always kill the joy in you. You want to be joyful, you have to give up attachment. This is the universal law. जितनी जल्दी समझ जाए उतना अच्छा है. Yes, anybody wants to share? Learnings धीरे धीरे ही आएंगी क्योंकि इस बार ज़्यादा ज्ञान नहीं है. Just wanted people to understand what is attachment first. And maybe in the next session we will go to what is detachment and what is the universal law of detachment. Yeah. But we can brush it up, definitely. Everybody clear? What is attachment? Attachment is ego-based, fear-based, not required in your life at all. Making a very bold statement now. Attachment की जरूरत ही नहीं है, connection की जरूरत है. Attachment ego level पे है, connection soul level पे है. चाहे वो relationship में हो लोगों के, वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति. I am the minister, chief minister. मैं कुर्सी नहीं छोड़ूंगा, कुर्सी तो हटनी ही हटनी है भाई.
या तो इलेक्शन में हट जाएगी या तेरे मरने के बाद हट जाएगी, हटना ही है. You can't, that is not permanent at all. Neither you are permanent nor the chair is permanent. Somebody else will come and take over. Correct? तो अब उससे अटैच होके क्या फायदा, बल्कि you will not enjoy the tenure when you are there. डर लगा रहेगा कब जाएगी मेरे हाथ से. So you are not enjoying life. Correct? Everybody clear on this? Yes. So let's have some more people share. किसी को कोई डाउट हो? Shashi? Yes, yes, yes. Go ahead. Can you clear me more about when you say you need connection? Okay. So you want to be more clear about what is connection, right? Yes. Okay. Anything that you do when you say I am a soul, you are a soul. तो उसमें कोई कंपैरिजन नहीं होगा. उसमें ना मुझे आपसे कुछ चाहिए, ना मुझे आपको कुछ देने की जरूरत है. That means I am not depending on you for anything. I don't need you, to tell you frankly. And then whatever I do in my life is full freedom. मुझे कुछ चाहिए ही नहीं ना तुमसे. क्या मुझे तुम्हारे, मतलब मैं कुछ और बोलने वाला था अभी, तुम्हारे किसी खानदान से कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारे माँ बाप से कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारे फ्रेंड सर्कल से कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा कुछ भी नहीं चाहिए. आप क्या उखाड़ लोगे तुम मेरा? कुछ नहीं बिगाड़ सकते मेरा. Now you cannot upset me at all. I don't need anything from you. How can you upset me? And now I am connected to divine. I am sending you blessings of love, peace and happiness. I am a happy soul. You are a happy soul. Connect. Take it or take it. That is my way of connecting. मुझे आपसे कुछ चाहिए ही नहीं. You take whatever I have. I have love, peace and happiness with me. That's all I have. Take it. You want to give anger? I'm not interested. Keep it with you. That is connection. You are not disturbed by anything that the other person is offering you. So I made some ridiculous statement, but I hope I've given you something to think about. Leslie? Yeah, rather you reminded me of a sentence with my wife. I mean, just 3 days back, I was talking to some person. It was a female. On the phone, तो she said कि अच्छा तुम्हारा अब affair चल रहा है इसके साथ. मैंने कहा कि hello, why would I have an affair? तो she says नहीं नहीं ऐसे ही build up होता है, धीरे धीरे बात करके तुम्हारा affair शुरू हो जाएगा. So she says this is how it starts. So I told her hello, after marrying you, after marrying you and being in complete love with myself, I don't need any love from outside anymore. So that was my sentence, and bang on, you just said it. Ke agar I'm totally in love with myself, I don't need anybody. Absolutely. And you don't need anything from anybody. That means I don't need love from any person in my life. I am connected to the divine. I am connected to the ocean of love. I fill myself with love, and then I distribute love to everybody. जिसको चाहिए ले जाओ. मेरे को आपसे कुछ चाहिए ही नहीं, तो आप मेरा क्या कैसे अपसेट करोगे? मेरे को बताओ ना. ठीक है ना? अब तो रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा क्या चाहिए? यू नीड टू एक्सपीरियंस एंड एक्सप्रेस लव. करेक्ट? तो आई एम एक्सपीरियंसिंग लव, आई एम एक्सप्रेसिंग लव. And let me tell you, when you do this, people will fall helplessly in love with you. That is the beauty of it. When you don't expect their love from them, they will fall in love with you. सारे ऋषि मुनि यही करते हैं. They connect with the divine, fill themselves with unconditional love and spread it to the whole universe. And the whole universe falls in love with them. They're not asking people, you think Avatar Krishna, Lord Krishna Avatar mein the, he went to all the gopis and said, I love you. He didn't have to. They were helplessly in love with him. He just took out his flute and started बांसुरी बजाना शुरू किया. गाय हो या गोपियां हो, सब पागल हो गए. That kind of unconditional love, and all of us are capable of that. And if you want to know how to fill yourself with love, you should attend the self-love session from Sanjeev, right? You will exactly know how to flood yourself with unconditional love and spread it to the whole universe. By the way, that's what healing is all about. Shashi, what just Yes. Leslie said, and this is the exact word what Amit ji said in the beginning. Leslie, when your wife said you would get into affair, that was her fear of losing something. That is where वो attachment से आ रहा है, वो connection से नहीं आ रहा है. बहुत सिंपल सी बात है, बिल्कुल सीधा सा एग्जांपल है.
could not go to Auroville. Yeah, we could not go to Auroville because of the Amit fact ji, that we had Amit ji, limited something time coming and from then your end. You have to we go had on a mute flight mode. to catch. Please go on But mute. I am definitely Go on mute. Amit revisiting ji, you have to go on mute Pondicherry mode. sometime soon. Okay. You are lucky that you say. Okay, no problem. Right. So thanks, Sanjeev. I went on a different tangent, but I Path hope wanted to say something. Actually, Path raised his hand. Yes, go ahead. So जब हम उस डिटैचमेंट वाली स्टेट में जाते हैं, आप जैसे आपने भी डिस्क्राइब किया, व्हाट हैपेंस टू द डिजायर्स, मतलब जैसे आपने बोला ना कि ठीक है, अब भाई ठीक है, प्यार बांट रहा है, आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लोग भी अट्रैक्ट हो रहे हैं, ओके, बट फिर डिजायर का क्या होता है कि क्या उस डिजायर की वजह से वो ड्राइव करती है उस तरफ लेके जाने के लिए, एंड उस स्टेट में पहुंचने के बाद डिजायर्स का क्या होता है? तो ये थोड़ा सा आगे चला गया मैं, जो सवाल आपका है थोड़ा सा पीछे है, तो मेरे को बैक ट्रैक करके वापस आना पड़ेगा, करेक्ट? तो पहले आप अपनी जब डिजायर्स पूरी कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड जाऊंगा क्योंकि आज का टाइम खत्म हो गया है। वी विल बिल्ड दिस अप इन द नेक्स्ट सेशन, करेक्ट? बेसिकली आपकी डिजायर क्या है? जो भी आपकी डिजायर है, आप डिजायर को बोलेंगे, वो हमने बात कर ली थी पिछले सेशन में, राइट? लॉ ऑफ इंटेंशन एंड डिजायर में हमने देख लिया था। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ डिजायर का इंटेंशन है, इंटेंशन को निकाला, आपने डिक्लेयर कर दिया और आपने उसको कैसे भेजा? कॉन्शियस माइंड से पास किया, पावर डब्ल्यू से, PAW से। उसके बाद आपने उसको इमेजिन किया, विजुलाइज किया एंड एक्शन में आ गए। एक्शन में आते समय आप क्या कर रहे हो? यू आर डिक्लेयरिंग इट टू द होल यूनिवर्स एंड देन यू से डिवाइन विल बी डन, बोलते हैं हम लोग। अगर कितने लोगों ने मेरा अफर्मेशन देखा है? कितने लोगों को मैंने अफर्मेशन बना के दिया है? किसी को मालूम आइडिया है? या एवरीबडी नोस डिवाइन विल बी डन का मतलब क्या है? शशीज विल बी डन नहीं, मेरा डिजायर है लेकिन मेरे को मेरा विल नहीं चाहिए, मेरे को डिवाइन विल चाहिए। मैंने यूनिवर्स के पास भेज दिया, वहां से अप्रूवल लग के आएगा, ठप्पा लगेगा उस पर, हाँ, जैसे गवर्नमेंट अथॉरिटीज ठप्पा लगा के देती हैं, देन वहां से तथास्तु मिलेगा। देन द डिजायर इज इन गॉड्स हैंड्स ना। मैंने अपनी अटैचमेंट छोड़ दी, मेरे को ये चाहिए, आगे आपकी मर्जी। तथास्तु लेके वो डिजायर आएगी और मेरी लाइफ में आ जाएगी। अटैचमेंट मैंने छोड़ दिया, डिजायर तो मैनिफेस्ट होंगी कर्मों के हिसाब से। लॉ ऑफ कर्मा भी अप्लाई होगा, जैसे मैंने लॉ ऑफ गिविंग भी आएगा उसमें, लॉ ऑफ बीइंग भी आएगा उसमें, सारे लॉस अप्लाई होंगे। लेकिन मेरी डिजायर को फुलफिल होने के लिए भगवान का तथास्तु चाहिए। तो मैंने क्या कह दिया? डिवाइन विल बी डन। मेरे को ये चाहिए, आगे आपकी मर्जी। अटैचमेंट खत्म हो गई वहां, अब भगवान की मर्जी है, मेरी मर्जी नहीं है। तो मैंने अपनी अटैचमेंट छोड़ दी, राइट? जैसे ही अटैचमेंट छोड़ी, डिजायर्स मैनिफेस्ट होने शुरू होंगे, तो डिजायर्स की फुलफिलमेंट होगी। जब सारे डिजायर्स की फुलफिलमेंट होने लग गई है, देन आई से कि मेरे को अब वर्ल्डली डिजायर से कोई मतलब नहीं है। आई वांट टू गेट कनेक्टेड विद यू। सो इन द स्पिरिचुअल जर्नी यू गेट कनेक्टेड विद द डिवाइन एंड देन यू एक्सपीरियंस दैट फ्लो ऑफ अनकंडीशनल लव इनटू योर सिस्टम फ्रॉम द ओशन। और जब वो भर जाएगा, अब आप उसको एक्सपीरियंस एंड एक्सप्रेस कर रहे हैं। आपके डिजायर्स फुलफिल होने ही हैं, जो छोटे मोटे इधर उधर से रह गए होंगे, बट अल्टीमेटली टर्न योर डिजायर्स टू द डिवाइन। दैट इज व्हाट आई वुड से, दैट इज द नेक्स्ट स्टेप, करेक्ट? पर धारणा, ध्यान, समाधि, सेम चीज मैं बोलूंगा अष्टांग योग में जो हमने सीखा था। समाधि में जाने से पहले धारणा और ध्यान को पार करना पड़ेगा। यू विल हैव टू फुलफिल योर डिजायर्स, देन डिजायर द डिवाइन एंड देन बिकम वन विद द डिवाइन। प्रोसेस यही है। यू आर नॉट गोइंग टू सैक्रिफाइस एनी ऑफ योर डिजायर्स। डिजायर्स को मारना नहीं है, या तो आप उसको एब्सटेन करोगे या फुलफिल करोगे। ये हमने लास्ट टाइम भी देखा था। तो यू विल फुलफिल ऑल योर डिजायर्स। ऑल यू हैव टू से इज आई एम लीविंग द अटैचमेंट टू द डिजायर, लेट द डिवाइन हैंडल इट। And if you allow me another 5 minutes, I will just complete what I'm just trying to say. So do I have the permission? 5 minutes? Yeah, good. तो अटैचमेंट को हटाने के लिए, डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए कुछ पंच लाइन्स हैं। So I will give you the punch lines now. We will discuss those punch lines in the next session. ठीक है? तो कुछ पंच लाइन्स जो मैंने अभी एक, जैसे मैंने आपको भी बताया कि डिवाइन विल बी डन। कुछ भी आप बोलो, उसके बाद आप बोलो डिवाइन विल बी डन। अटैचमेंट खत्म हो गई आपकी, आपने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइन को दे दिया। मेरी ये डिजायर है, आगे आपकी मर्जी। अब जब तक तो उनके डिपार्टमेंट में है, वो संभालेंगे। अटैचमेंट खत्म हुई। एक और स्टेटमेंट जो अमित जी हमेशा बोलते हैं, whatever happens happens for the good, करेक्ट? जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। आपने अटैचमेंट छोड़ दिया,
जो हो रहा है होने दो, एक्सेप्टेंस आ गई ना, एक्सेप्टेंस से भी आपकी अटैचमेंट खत्म हो जाती है. यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट द मोमेंट यू एक्सेप्ट थिंग्स द वे दे आर एंड द वे दे आर नॉट, you are getting free from attachment. Yes or no? Correct. और क्या स्टेटमेंट आ सकते हैं? Now let me have some statements from you. और क्या आ सकती हैं? एक तरीका है divine will be done. एक है whatever happens happens for the good. और क्या स्टेटमेंट हो सकती हैं? Which will free you from attachment. मेरा कर्म ही मेरा भाग्य बना रहा है. तो जो कुछ आ रहा है मेरे ही कर्म है, तो आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे तो अटैचमेंट खत्म हो जाएगी. ना राग रहेगा ना द्वेष. संजीव often says that statement. संजीव, if you can repeat that. ना खुशी में राग ना गम में द्वेष. परफेक्ट. ना खुशी में राग ना गम में द्वेष. तो ना आप अच्छी सिचुएशंस में अटकेंगे ना बुरी सिचुएशंस में अटकेंगे. This too shall pass. This too shall pass. Yeah, I was going to say that. Yeah, good. I knew it was about to come. मेरे thought process और आपका thought process सेम ही चल रहा है, right? This too shall pass. बहुत बड़ा स्टेटमेंट है ये. बिल्कुल अटैचमेंट से आपको निकाल के बाहर निकाल देगा वो. पूरे डिटैच कंडीशन में आ जाओगे. और आज ही मैं स्पीकिंग ट्री पढ़ रहा था सुबह, टाइम्स ऑफ इंडिया में जो आता है, उसमें एक वर्ड मैंने सुना था, अगाथा क्रिस्टी से लिया था, अगैथिज्म कुछ था. Agathist theory. So it is not pessimist, it is not optimist, it is agathist. AGATHIST, agathist. And what does it say? कि whatever happen is happening right now, good or bad, अंत में सब अच्छा ही होगा. Like in the end everything will be happy. Happy is endings, like in Om Shanti Om he says. So end में सब कुछ अच्छा ही होगा. So it is like a goody stuff that is going to happen in the end. अब end कहाँ है? You have to understand that statement very, very deeply. I'm not talking possibly of this life. It's possibly talking of the ultimate end. Right? तो ultimately हर सोल को सेल्फ रियलाइजेशन की स्टेज पे जाना ही है, स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना ही है. तो अभी कुछ खराब हो रहा है, नेवर माइंड, गो अहेड, कीप वॉकिंग, आगे बढ़ते रहो. एंड में सब अच्छा ही होगा. इट कुड बी ए मूवी, इट कुड बी दिस लाइफ, इट कुड बी द डे. दिन के आखिर में सब कुछ अच्छा हो जाएगा. कैसे भी आप मान लो, या इस महीने के एंड तक सब कुछ अच्छा हो जाएगा, या इस साल के एंड तक सब कुछ अच्छा हो जाएगा, या इस लाइफ के एंड तक सब कुछ अच्छा हो जाएगा. Whatever, you focus on what you are doing, you focus on your karma and leave everything to the divine. The divine will take care and everything will be fine. Agathist theory. आज ही पढ़ा, मुझे अच्छा लगा. Right? So if anybody taking Times of India can watch that, I mean read that speaking tree. हाँ जी अनीता जी. फास्ट. हाँ, we have already overshot the time. हाँ, एक सेंटेंस में ये अटैचमेंट से निकलने का एक रास्ता ये भी है कि हम असंगता रूपी कुल्हाड़े से इन अटैचमेंट की झाड़ियों को काटते चलें कि मेरे संग नहीं जाना, मेरे संग नहीं जाना. ये विचार भी हमारे को कभी कभी अटैचमेंट से निकालता है. कभी कभी नहीं, अक्सर निकालता है. मैं जब ये सेंटेंस बोलती हूँ कि मेरे संग नहीं जाना, तो उससे क्या होता है कि मैं अटैचमेंट में से निकल आती हूँ. और सर एक बात और, एक सेशन ना लॉ ऑफ एक्सेप्टेंस पे जरूर लेना, कि वो मुझे लगता है कि वो बहुत जरूरी है. कि वो पता नहीं मुझे बार बार क्यों लगता है, लेकिन अगर पॉसिबल हो तो प्लीज प्लीज. लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट में एक्सेप्टेंस कर चुके हैं अनीता जी. लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट, लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट में जाइए. अच्छा, मेरे वीडियो रिकॉर्डिंग में देखिए, पूरा एक्सेप्टेंस ही था उसमें. एनीवे, अगली बार हम थोड़ा सा कवर कर लेंगे लॉ ऑफ एक्सेप्टेंस. ठीक है सर. ओके, गुड. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. एवरीथिंग द मोमेंट यू एक्सेप्ट, दैट मींस लेट गो. और अनीता जी ने अभी बोला वो एक्चुअली कुल्हाड़ी से काटने वाली जो बात करी, वो लेट गो की बात करी. लेट गो ऑफ एवरीथिंग, लेट गो ऑफ ऑल योर इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस, लेट गो ऑफ ऑल द नेगेटिव थॉट्स, लेट गो ऑफ ऑल द नेगेटिविटी. ये सब माइंड का कचरा है, छोड़ दीजिए. जितना लेट गो करेंगे उतने आप डिटैच हो जाएंगे, उतने फ्री हो जाएंगे, उतने पॉजिटिव होंगे, उतने हैप्पी होंगे, उतने जॉयफुल होंगे. एक्सपेक्टेशंस कम कर लीजिए. लेट गो ऑफ योर एक्सपेक्टेशंस. You will be free, you will be full of power and joy. Yes. So I leave this as food of thought. Think about it for 1 week. We meet again next Wednesday and then we will continue this session because there is a lot of discussion here. काफी material है सोचने के लिए. Statements जो मैंने बोली हैं, इस पे गौर करिए, इनको अपनी लाइफ में लाइए.
and it will create magic in your life, I tell you. When you realize my whole life has been based on attachment, that is when magic will start. Because you will go let go like that. एक झटके में आप छोड़ दोगे, नहीं चाहिए. And I'm saying not needing someone or not needing something is a great freedom. And you're not actually running away from life. You will start enjoying life much more than that. Because people and things will come magnetically attracted to you. People will helplessly fall in love with you. How many of you want people in your life to fall in love with you? I spent the whole of my life wanting this. And only recently I realized that the best way to do that is give up all the attachments. That's all. People will helplessly fall in love with you. Let me tell you that. Yeah, and very soon you will come to the category of being an avatar. Okay, so with this, we come to the end of the session. Thank you very much for your participation. As always, it was an awesome experience for me. And we will meet again next Wednesday. Thank you very much. God bless. Enjoy a great life. Thank you. Thank you.